Hello guys, welcome to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the books for ASTET Level 3 examination. यहाँ पर हम books के बारे में discuss करेंगे. But before going to discuss about the books for ASTET PGT Chemistry, we must know about the pattern of this examination. What is the pattern of this examination? Which type of questions are asked from which subject in this question in this exam? Now, generally there are four sections in this paper. Uh, First is of psychology and childhood, which carry 30 marks. There is one question for 1 marks, and total questions are coming in for from psychology and childhood is of 30 marks. Next, there is Hindi and English, and again there will be 30 questions for 30 marks. Means to say 1 marks for each question is to be allotted in this section also, but 15 questions are coming from Hindi and 15 questions are coming from English. Next section, maths, reasoning and Haryana GK. Again, it carry 30 marks and the marks are divided in such a way that maths is of coming 10 marks and reasoning questions are asked only for 10 marks and Haryana GK also for 10 marks, right? And the next section is subject, concerned subject. If you are preparing for PGT chemistry, then definitely there will be question of chemistry subject, right? And which are 60 question carrying 1 marks each and total is of 60 marks. And the total marks of this paper is 150 and qualifying marks are 90, right? Means to say you have to score minimum 90 marks out of 150, then you can qualify this examination, otherwise not for general category. Now we are going to discuss the books by which from which you can study and you can qualify this exam easily. Now, books is for this exam just for general paper, that is for first section psychology. Psychology, the SK Mangal is the best book for psychology, right? If you don't have SK Mangal, then you can purchase. If you cannot purchase, or if you are having any other books that you have studied in B.Ed, then you can follow that also, right? You can follow that also, you can study from that book also, but doing this you have to solve the previous year questions of psychology. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइकोलॉजी के कर लोगे और एस के मंगल या फिर आपके पास जो भी बीएड में बुक पढ़ी है आपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए वो पढ़ लोगे तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26-7 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे. मीन्स टू से यू कैन स्कोर इजीली 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट इज ऑफ हिंदी. नाउ हिंदी इस एग्जाम में बहुत ही जनरल हिंदी पूछी जाती है. नॉर्मली ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, राइट. तो आप किसी भी कोई भी बुक ले लीजिएगा, लाइक हरियन पब्लिकेशन यू कैन परचेज विच कंटेन्स ओनली ग्रामर. सिर्फ ग्रामर पर फोकस करना है, अदर पार्ट पे नहीं करना. फिर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो भी बोर्ड के लिए आपने बुक पढ़ी है हिंदी के लिए स्कूल लेवल पर, वो परचेज कर सकते हो या फिर आपके पास होगी वहाँ से आप हिंदी कवर कर सकते हो. तो 15 में से मे बी 15 आप स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज 10, 12, 13 इजीली स्कोर कर पाओगे आप, राइट. नेक्स्ट इज ऑफ इंग्लिश. अगेन इंग्लिश बहुत ही इजी पूछी जाती है स्टेट में. हिंदी का लेवल काफ़ी टफ रहता है, बट हिंदी इंग्लिश इज ऑफ वेरी वेरी इजी, नॉट सो टफ वन. 15 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के. अगेन 15 के 15 कई बार तो ग्रामर से होते हैं, राइट. सो वोकैबुलरी के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आएंगे तो अदरवाइज आएंगे ही नहीं. मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन. सो यू कैन स्कोर इजीली 15 आउट ऑफ 15 स्पेशली इन इंग्लिश सेक्शन, राइट. अंग्रेजी में आप आराम से 15 से 15 स्कोर कर सकते हो, बट हिंदी में कुछ मेरे लिए तो टफ हो जाता है, राइट. नेक्स्ट मैथ्स. सो किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जनरल मैथमेटिक्स आता है, तो आप उसकी कोई भी जनरल बुक परचेज कर लीजिएगा. फॉर एग्जांपल आप डीएसएसबी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, जो मैथ्स की बुक है वहाँ से कर लीजिएगा. अगर आप बुक नहीं प्रिपेयर करना चाहते तो डोंट वरी, आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से क्वेश्चन वो सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा, राइट. सो वहाँ से टॉपिक देखिएगा और टॉपिक यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा.
यूट्यूब पे नॉर्मल टॉपिक मिल जाते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। सो 10 मार्क्स में से 10 भी स्कोर कर सकते हो आप लेवल थर्ड में। बट अगेन अगेन टाइम की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, टाइम को देखते हुए आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करके ही जाना है आज मैथ्स में, राइट? बिकॉज हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, मिनिमम 90 मार्क्स तो आने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी आ जाए, राइट? नेक्स्ट रीजनिंग, अगेन साइट से सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा, सिलेबस को देखिएगा और टॉपिक चेक कीजिएगा, और इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है रीजनिंग का। नेक्स्ट हरियाणा जीके। नाउ अगेन हरियाणा जीके के सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको, स्पेशली मैंने तो हरियाणा जीके प्रिपेयर किया नहीं था, ठीक है? अगर आपको हरियाणा जीके प्रिपेयर करना है तो इसके लिए बहुत अच्छी बुक है हरियाणा दिग्दर्शन, आर्यन पब्लिकेशन की है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो, सारी की सारी किताब को, तो आपके 10 में से 7 टू 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएँगे, राइट? सो 1-2 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफ़ेयर्स से आता है, राइट? तो आप करंट अफ़ेयर यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है? या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ से भी आपका करंट अफ़ेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो 10 में से 8 7 से 8 क्वेश्चन तो बुक से कवर हो जाएँगे और सिर्फ़ 1-2 क्वेश्चन बचा वो करंट अफ़ेयर्स आता है, वहाँ से कवर हो सकते हैं आपके, ठीक है? तो जनरल पेपर भी आपका अच्छा जा सकता है अगर आप ये बुक्सेस फ़ॉलो करते हो तो। नेक्स्ट, स्पेशली बुक्सेस फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के लिए बुक्सेस देखनी है हमें कि केमिस्ट्री के लिए कौन-सी किताब पढ़ें कि हमारे 60 में से मिनिमम 50 50 के आसपास तो आ ही जाएँ, 40 टू 50 के आसपास तो ईज़िली आ ही जाएँ और आ भी जाते हैं अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ लिया, नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। क्रामिंग के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आते, ठीक है? पॉलीमर से आ गए 1-2 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से आ गए 1-2 क्वेश्चन, अ एफ ब्लॉक एलिमेंट से आ गए 1-2 क्वेश्चन, तो वहाँ से थोड़ी-सी क्रैमिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ नॉर्मली बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ। नाउ सबसे पहले मैं बोलूँगा आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीटली कवर कर लें, ठीक है? अच्छे तरीके से पढ़ लें क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक। अगर आप क्लास और 12th की एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है, तो आप किसी अनदर ऑथर की भी पढ़ सकते हो, किसी अनदर ऑथर की जो बोर्ड लेवल पर है, राइट? तो वहाँ से आपके 25 टू 30 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएँगे, अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो। 25 से 30 क्वेश्चन तो ईज़िली हो जाएँगे, 30 या 35 में कई बार तो 35 भी जा सकते हैं आपके, 35 भी जा सकते हैं। नाउ अनदर स्पेशली बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक के लिए चेक करते हैं कौन-सी बुक सबसे पहले, मैं ये बोलूँगा जो आपने ग्रेजुएशन में किताब पढ़ रखी है, अगर वो पढ़ ले तो दी बेस्ट है, ठीक है? वो पढ़ ली क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, समझ रखी है अच्छे से, कहाँ कौन-सी टॉपिक है वो भी है और ईज़िली आपसे बहुत फ़ास्टली कवर भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, मतलब एक्यूरेसी मैक्सिमम हो, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रूइस बहुत अच्छी किताब है, ठीक है? ये किताब परचेज़ कर सकते हो और यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर ये किताब या तो ये परचेज़ कर लो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन, क्लेडन की बुक बहुत अच्छी है, ये कर सकते हो, ठीक है? तो ऑर्गेनिक इन 2 किताबों से आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी, लेकिन पढ़ना कैसे है? ऐसा नहीं हम पूरी की पूरी किताब पढ़ेंगे, ब्रूइस पढ़े या फिर जोनाथन क्लेडन पढ़े, सारी किताब हमें नहीं पढ़नी है। हमें क्या करना है, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है और वहाँ से टॉपिक देखने हैं और वही टॉपिक इन किताबों से पढ़ लेने हैं, राइट? तो वही टॉपिक इन किताबों से पढ़ लेने हैं, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि किताब बहुत भारी भरकम नॉलेज है, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है सिलेबस टू द पॉइंट, जो कि वेबसाइट पर गिवन है। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया। नाउ अब 4 से 5 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे जाते हैं, ठीक है? अब कुछ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बट कुछ यूनिवर्सिटी में मास्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है? तो 3 से 4 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे ही पूछे जाते हैं, तो पाविया से सिर्फ़ आपको यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करनी है, आईआर कंप्लीट करनी है और एनएमआर, एनएमआर में भी प्रोटॉन एनएमआर से काम चल जाएगा। कार्बन एनएमआर अब तक तो नहीं पूछे गए, आगे का पता नहीं, मे बी पूछ भी ले। मैक्सिमम आप कार्बन एनएमआर तक पढ़ सकते हो, किससे? पाविया नाम की किताब से, ठीक है? बहुत अच्छी किताब है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। नॉर्मली सारे क्वेश्चन जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे जाएँगे, वो ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएँगे इसी किताब से। नेक्स्ट बुक, अब बात करते हैं बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़े फॉर दिस एग्जामिनेशन? अगेन सेइंग क्लास 11-12 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए आपकी। उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चन ठीक हो गए, मीन्स उससे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, राइट? और जो भी यूजी में पढ़ी है वो ले लीजिएगा, अगर वो नहीं है आप जेडी ले सकते हो। जेडी बहुत अच्छी किताब है इनऑर्गेनिक से। अगर ये नहीं है तो जेम्स ई हुई ले सकते हो, या फिर श्राइवर एंड एटकिंस। श्राइवर एंड एटकिंस बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। वैसे तो जेडली भी अच्छी है, जेम्स ई हुई भी अच्छी है, लेकिन जेम्स ई हुई के अंदर टू द पॉइंट दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। जेडली के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और साइबर एटकिन के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन जेम्स ई हुई के अंदर टू द पॉइंट, राइट? टू द पॉइंट मीन्स टू से यू हैव टू टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक, राइट? बहुत अच्छी किताब है, और यहाँ से इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपको 60 आउट 60 लेनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू रीड दीज बुक्स इज ऑल्सो। नेक्स्ट बुक्स इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। एज सच मैंने कोई फिजिकल केमिस्ट्री की फॉरेन ऑथर की तो बुक फॉलो नहीं की थी। जब मैं यूजी में था, पीजी में था, उस टाइम तो हम पढ़ लेते थे, बट इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं की। लेकिन 11-12 की एनसीईआरटी इजीली पढ़ लीजिएगा, अदर ऑथर के तो वो पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं आते, ठीक है। नॉर्मली आपके 12th स्टैंडर्ड से ही आई होप कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछे जाते हैं। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के एल कपूर, ठीक है, जितने भी वॉल्यूम है के एल कपूर के, वो सब मैंने तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है, बिकॉज आई हैड डन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और सारे के सारे मेरी ही यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो ये बहुत अच्छी किताब है, के एल कपूर, पढ़ सकते हो। और अगर आपने इतना कर लिया तो आई होप आपके 60 में से 60 भी आ सकते हैं, अदरवाइज 50-55 के बीच में इजीली। बट अगेन अगेन सेइंग टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इन दिस एग्जामिनेशन। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है। मैंने कैसे किया था? नॉर्मली मैंने सबसे पहले साइकोलॉजी अटेम्प्ट कर ली थी, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना साइकोलॉजी को, ठीक है। मैक्सिमम कितने 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना है साइकोलॉजी को। ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका टाइम बहुत जल्दी जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सेम थिंग, हिंदी इंग्लिश नॉर्मली हो जाती हैं, बट मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में लगे रहते हैं और फिर बाद में उनका सब्जेक्ट रह जाता है, राइट? सो तो जो जनरल पेपर है हमें एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि हम यहाँ टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मान लो 60 क्वेश्चन बचे हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसे स्पीड में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हरियाणा जी के तो हमें मतलब जो पढ़ते हैं उन्हें तो आता है, जो नहीं पढ़ते तो उन्हें कैसे आएगा। तो हरियाणा जी के अगेन फोकसिंग, तो ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, रीजनिंग के नहीं हो रहे, हरियाणा जी के क्वेश्चन नहीं आ रहे। डोंट वरी, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन ऑल्सो, बट ऑन सब्जेक्ट यू मस्ट हैव वेरी गुड कमांड। आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट पर, उसके बाद ही आपके ये टेस्ट इजीली क्वालिफाई हो सकता है। बिकॉज 60 में से मिनिमम 50 45 50 तो आने ही आने चाहिए आपके, ठीक है। अदरवाइज मोर देन 50 द बेस्ट। नाउ प्रिकॉशन क्या है? अगेन सेइंग स्टडी करने में टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कि वेबसाइट पर गिवन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। और अभी टाइम भी मुश्किल से 2 मंथ बचे हुए, तो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। शोल एटलीस्ट वन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एस्टेट एग्जाम, कम से कम 1 साल पुराना पेपर तो जरूर पढ़ लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। ओके स्टूडेंट, आई होप this video is very helpful for you, and these are the books that I have followed during my preparation, right? और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी तो 2 महीने बचे हैं, आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके ओके गाइस, बाय।